Good morning, students. Last class we have discussed about the dihybrid crosshair. So today we'll discuss about chromosomal theory of inheritance. That is actually this is we are discussing till now. We have discussed about the genes are actually inheriting from one generation to next generation. Now it was actually proposed by Sutton and Bovary that actually genes are not moving. Who is moving? Chromosome, a substance in a nucleus which is moving from one generation to next generation for information transmission, and that's why this theory is known as chromosomal theory of inheritance. It was proposed by Sutton and Bovary. They work out the chromosome movement during meiosis, means it is not said now genetical movement, is called actually chromosomal movement. The movement of behavior of chromosome was parallel to the behavior of the genes. So these genes and chromosomes now they are coming little bit parallel. The chromosome movement is used to explain the Mendel's law. The knowledge of the chromosomal segregation with Mendelian principle is called the chromosomal theory of inheritance. Okay. क्रोमोजोम एंड जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स इन डिप्लॉयड सेल्स, है ना. जैसे जीन्स आप मान रहे हो ना, वैसे जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम, and that's why when the genes are supplied, means chromosomes are actually separated, so that along with the chromosome genes are also separated. Homologous chromosomes separate during the gamete formation and फर्टिलाइजेशन रिस्टोर, मैंने जब भी गैमेट फॉर्मेशन हो रहे हैं एट दैट कंडीशन द क्रोमोजोम्स आर सेपरेटेड, बट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन अगेन दिस क्रोमोजोम नंबर रिस्टोर. क्लियर? अच्छा, so next one you are coming. Chromosomal theory of inheritance is over. Now chromosomal theory of inheritance was actually postulated by Sutton and Bovary, but actually who experimentally proved that one? That is Thomas Hunt Morgan. Morgan experimentally proved that these actually chromosomes are moving from one parent to the next generation. Actually, along with the chromosome, the genes are also moving. So Morgan worked with the fruit flies. What is the name of the fruit fly here? Drosophila melanogaster. Drosophila is the genetical specific epithet, and the melanogaster is the specific epithet. You can see that one. This one is the female one, this one is the male one. They are structurally also they are different from each other. That's why you can identify also from outside. Next one we are coming. He selected Drosophila. Morgan selected Drosophila because it is suitable for the genetical studies and it grown on the simple synthetic medium. कल्चर बहुत अच्छे से किया जाता है इसको. देयर लाइफ साइकिल इज अबाउट 2 weeks. बहुत ही कम टाइम में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, तो इन विद इन वेरी लेस टाइम यू कैन गेट द रिजल्ट. अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज. बहुत सारी एक ही मेटिंग में और एक ही रिप्रोडक्शन की साइकिल में आपको बहुत सारा प्रोजेनी मिल जाएगा. क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लाइज, ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट वन. Many types of hereditary variation can be seen with low power microscope. जैसे पी प्लांट को मेंडल ने सिलेक्ट किए थे क्योंकि 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उसमें दिखे थे, वैसे ही यहाँ पे भी ड्रोसोफिला के अंदर बहुत सारी वेरिएशन दिखता है. दैट्स वाई ही हैड सिलेक्टेड दैट वन. Next one we are coming now for sex determination. Actually sex determination in case of humans, all of you know that one, how it is going on. That is actually XX and XY, but here we are actually discussing about mainly 3 types, 4 types mainly. One is Drosophila, second one is the grasshopper, third one is the bird, that is fowl bird, and fourth one is the honeybee. So these 4 types of sex determination we have to discuss. So here it is given to us 50%. देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पहले हम जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हमें पढ़ा था कि 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव्ड दिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, मीन्स एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहे. हु टोल्ड दैट ऑन? हेंकिंग टोल्ड दैट कि ड्यूरिंग स्पर्माटोजेनेसिस ऑफ सम इंसेक्ट, during spermatogenesis of some insect, what he observed,
he observed that 50% of the sperm received this specific structure whereas 50% sperms did not receive it, है ना. 50% स्पर्म के पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पहुंच रहे हैं बट 50% स्पर्म्स दे आर नॉट रिसीविंग इट. ही गेव अ नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर एज एक्स बॉडी और दिस इज एक्चुअली नोन एज द एक्स क्रोमोजोम. तो इसका मतलब ये है कि हेंकिंग ऑब्जर्व किए थे कि स्पर्माटोजेनेसिस मतलब स्पर्म प्रोडक्शन के टाइम कुछ स्पर्म के पास एक्स क्रोमोजोम जा रहे बट कुछ स्पर्म के बाद एक्स क्रोमोजोम नहीं आ रहे. सो नाउ दैट टाइप इज नोन एज XXXO टाइप. दिस इज एक्चुअली सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रास हॉपर. जैसे हम ह्यूमन बींग्स में क्या देखे थे ना XX और XY टाइप, हेयर Y इज नॉट कमिंग मीन्स हाफ ऑफ द स्पर्म्स आर नॉट गेटिंग दैट एक्स क्रोमोजोम, है ना. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द XO टाइप. Okay, now here how many pairs are present? 24 chromosomes are present. जैसे हमारे पास 46 है तो यहाँ पे इसके पास 24 है. और बट इन मेल के लिए कितना है ना, मेल हैज़ ओनली 23 क्रोमोसोम. वाई ना, मेल जैसे यहाँ पे है कि जैसे मान लो XX है ना, तो XX किसके लिए है ना, फीमेल के लिए है. और XO किसके लिए है ना, मेल के लिए है. तो फीमेल की एग के पास क्या होगा, ऑल एग आर कंटेनिंग एक्स एंड इन केस ऑफ द एक्स एंड O that means half of the sperm is getting X but half of the sperm is not getting anything. So that's why when this X and X is combined, so definitely who is presenting there? They are actually females are produced. And when these X are combining with O, that means 0, then the males are producing. क्लियर नाउ. तो इसके पास कितना रहेगा कि 11 मीन्स 22 प्लस इट इज 2 मीन्स 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम एंड 11 पेयर ऑफ विच वन, ऑटोजोम. तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, यहाँ पे तो 24 आ जाएगा लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 23. क्यों 23? नहीं, ये तो है 11 पेयर आपके पास ऑलरेडी कंडीशन प्रेजेंट, मतलब ऑटोजोम तो है ही लेकिन एक ही आएगा इससे. एक 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम में एक ही आएगा और एक तो है ही नहीं. तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा वहाँ पे 22 प्लस 1 दैट इज 23 विल बी कमिंग देयर. ओके, तो दिस इज अबाउट द, देखो यहाँ पे लिखा है सम स्पर्म्स 50% एक्स क्रोमोजोम एंड 50% डू नॉट. एंड एक फर्टिलाइज्ड स्पर्म हैविंग, जो एक इस स्पर्म के साथ कंबाइन हो रहे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 24 आ जाएगा मीन्स 22 प्लस 2, 22 तो इधर आ जाएगा और 22 ऑटोजोम और इसके साथ 1 पेयर सेक्स क्रोमोजोम. बट यहाँ पे मेल के लिए क्या हो रहे हैं ना, 22 ऑटोजोम तो है लेकिन 1 पेयर सेक्स क्रोमोजोम नहीं आ रहे, 1 सेक्स क्रोमोजोम इज कमिंग देयर. सो एक फर्टिलाइज्ड स्पर्म विदाउट एक्स क्रोमोजोम बिकेम मेल. तो जो स्पर्म व्हिच इज नॉट गेटिंग द एनीथिंग, which is not getting anything, which is 0 actually we are considering that one, they when this X combine with this one, so that will form the मेल वन. ओके, नेक्स्ट वी आर कमिंग XXXY टाइप. ये तो आपके नोन है, जैसे मैमल्स में होता है. इट इज़ डिटर्मिनेशन इन सम इंसेक्ट स्पेशली ड्रोसोफिला ऑल्सो वी कैन से दैट बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट है नंबर ऑफ क्रोमोजोम, सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम. जैसे वहाँ पे मेल में कितना था 23 और फीमेल में था 24. यहाँ पे दोनों के लिए जैसे जो है उसके ट्वाइस नंबर ऑफ क्रोमोजोम ही रहेगा. तो ये हो गया फीमेल के लिए ऑटोजोम, दिस वन इज ऑटोजोम एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट है. और मेल के लिए क्या है, ऑटोजोम इज प्रेजेंट है, साथ ही साथ 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम भी प्रेजेंट है. तो यहाँ पे XX जो है दैट इज एक्चुअली फीमेल, दैट्स इट इज कॉल्ड फीमेल को हम क्या बोलते हैं ना, होमोगैमेटी, फीमेल होमोगैमेटी. और मेल हेटेरोगैमेटी, क्योंकि मेल के लिए कौन सा है XY इज द जेनेटिकल जीनोटाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन. तो XY है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, मेल हेटेरोगैमेटी कंडीशन. नेक्स्ट वन यूर कमिंग ZZZW. दिस इज एक्चुअली कमिंग फॉर बर्ड्स, है ना. यहाँ पे जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मेल्स आर हेटेरोगैमेटी बट हियर फीमेल्स आर हेटेरोगैमेटी, है ना. दिस इज द डिफरेंस. सो इन दिस टाइप फीमेल बर्ड्स हैज 2 डिफरेंट सेक्स क्रोमोजोम दैट इज Z and W. दिस इज फीमेल वन and this one is male one. So male birds have 2 similar sex chromosome called ZZ, and in this type of sex determination female is heterogamety and male is homogamety. Okay, next one is the sex linked inheritance. Before that we are coming here. Acha, next one is coming. Okay, ZZZW. So now this one is
Okay, next one is the for honeybee is not given here, no? Okay, next one, sex linked inheritance in Drosophila. That is, we are coming about that genes responsible. देखो यहाँ पे ड्रोसोफिला में दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे. दैट इज वाइल्ड वेराइटी ऑफ ड्रोसोफिला है रेड आई, ब्राउन कलर बॉडी एंड नॉर्मल साइज विंग, and the mutated Drosophila has white eye, yellow color body and short wing. The genes responsible for color of eye, body, wing size are present in X chromosome. When the red eye female Drosophila crossed with male white eye, the F1 generation all are red eyed. When males and females of F1 are crossed, in F2 all females are red eyed, while 50% male are white and 50% are red eyed. So we will see that one how it is actually happening. So look at here, this is actually the generation. There we can see this one is the female one and this one is the male one. Male one is white eyed and female one is the red eyed here. So now we are coming when in this, so if I am coming with the X plus and X plus for which one, the female, and here it is coming about the X plus and Y, sorry, X and Y, not X plus here. 1 minute. X and Y. So this is actually coming about which one? Now white eyed. So you can see that one X plus characteristic is responsible for which one? That is responsible for the red eye color. So now as it is dominating, so what will be the genotype of this female? That is coming X plus, means X is combining with this one, so X plus X. Clear? And here what will be the genotype here? Now X plus and Y. ठीक है. So X plus and Y will be the genotype. तो definitely दोनों ही red eyed हो जाएगा क्योंकि दोनों के पास X plus है. Now when the X plus is combined with X plus, तो definitely क्या आ जाएगा? Red eyed female. Again X with X plus, that also coming about the red eyed female. But when X plus combined with Y, that will be coming about the red eyed male. But when X combined with Y, that will be coming about the white eyed male. So this one is XY, this one is X plus Y, this one is X plus X, and this one is X plus X. Okay, so these are characteristics here. So by on the basis of that, this simply human sex determination जैसे होता है, यहाँ पे भी वही condition है. Next one we are coming. अच्छा लुक एट हेयर, दिस इज ऑलरेडी गिवन टू अस. हम मैंने एक्स प्लस बोला था, यहाँ पे एक्स डब्ल्यू प्लस दे के रखा है और यहाँ पे भी एक्स डब्ल्यू वाई दे के रखा है. तो डेफिनेटली यू अंडरस्टूड दैट वन हाउ इट इज कमिंग रेड आइड फीमेल ऑल्सो एज वेल एज द रेड आइड मेल. एंड देन इट इज कमिंग अबाउट द it is when they both are actually fertilizing with cell fertilization is going on. So at that condition it is coming about the first one is actually red eyed male and sorry female, and here also red eyed female. But in case of male what is happening? Now in case of male some is red eyed and someone is the white eyed. Clear? Already I told you that one. Next one is the linkage. In the linkage here a little bit we have to show that one also. Linkage, what is linkage here? Linkage actually means the linked. When the genes are present in the chromosome and they are linked with each other, they are linked, so that is actually called the linkage. Means as they are very closely placed, so they cannot be independently assorted. मतलब सेपरेट नहीं हो सकते आराम से, या कम्प्लीटली सेपरेशन नहीं हो रहे. मतलब जैसे हम पढ़े थे कि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये चारों ही इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गए थे. लेकिन जब भी जीन्स आर बहुत ही पास पास प्रेजेंट होगा, बहुत ही पास पास प्रेजेंट होगा, तो मान लो सॉरी यहाँ पे मान लो जीन्स आर बहुत ही पास पास प्रेजेंट है और यहाँ पे जीन्स आर प्रेजेंट से बहुत ही डिस्टेंटली प्लेस्ड है. तो यहाँ पे ये जीन्स के लिए जो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. बट यहाँ पे क्या हो जाता है ना, एज दे आर फारली प्लेस्ड, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होना ईजी हो जाता है. तो दैट वन विल शो नाउ. तो यहाँ पे लिखा है ना कि ही ऑब्जर्व दैट टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर and the F2 ratio deviated from the 9:3:3:1. जैसे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था कि 9:3:3:1 रेशियो आता है, तो यहाँ पे वो रेशियो नहीं आएगा. अभी देखते कैसे है ये चीज़. अच्छा अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा नहीं, क्रॉस ए क्रॉस बी, ओके. Look at here,
दिस वन इज पेरेंटल जनरेशन। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन ये फीमेल है, फीमेल में YW कोई प्लस नहीं है, तो ये है येलो वाइट, और ये है Y+W+। एक्स क्रोमोजोम में Y+W+ प्रेजेंट, Y क्रोमोजोम में तो कुछ है ही नहीं। तो जहाँ पे ये दोनों प्लस प्रेजेंट होगा, एट दैट कंडीशन ओनली दिस वाइल्ड टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी एक्सप्रेस्ड, दैट इज मेल वन। अभी देखो यहाँ पे F1 जनरेशन आपको दिखा रहे हैं। F1 जनरेशन में क्या हो रहा है ना, ये इसमें कौन सा गैमेट आएगा, YW इन केस ऑफ फीमेल गैमेट, इन केस ऑफ फीमेल गैमेट ओनली एक ही टाइप आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, जब भी YW Y+W+ के साथ कंबाइन होगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज द रिजल्ट विल बी कमिंग, दैट इज द फीमेल वन, क्योंकि दोनों ही YW है तो रिजल्ट वही आएगा। और जब भी ये Y क्रोमोजोम इसके साथ अटैच हो जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा ना, YW, दैट मीन्स इट इज़ कमिंग विद द X क्रोमोजोम एंड Y क्रोमोजोम। तो जब भी देखो ये दोनों ही प्लस कंडीशन प्रेजेंट है तो इसीलिए वाइल्ड टाइप आ गए और येलो वाइट भी आ गए। मेल में येलो वाइट आए और फीमेल में कौन आए, फीमेल में आए वाइल्ड टाइप। नाउ F1 जनरेशन टू F2 जनरेशन, इसमें क्या होगा, ये जो चार है दिस 4 आर पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी क्या हुआ, यहाँ पे जो YW है तो इसीलिए YW के साथ X की, YW के साथ X की कॉम्बिनेशन, Y+W+ के साथ X की कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे दोनों चीज़ आपको दिख रहे हैं, Y+W+ एंड Y एंड YW Y, ठीक है। Y क्रोमोजोम की बात मैं कर रही हूँ, तो Y+W+ के साथ Y क्रोमोजोम और YW के साथ Y क्रोमोजोम। जब Y+W+ के साथ तो वाइल्ड टाइप हो गया, YW के साथ जब Y क्रोमोजोम आ रहे तो येलो वाइट हो गया। अभी ये तो हो गया मेल। फीमेल में क्या आएगा ना, फीमेल में ये X इसके साथ ऐड होगा, X इसके साथ ऐड होगा, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा ना, Y+W+ के साथ YW, है ना। यहाँ पे ये है Y+W+ YW एंड यहाँ पे ये है YW। तो YW मतलब क्या आएगा, येलो वाइट, और ये आ जाएगा वाइल्ड टाइप। तो ये हो गया पेरेंटल को, माने पेरेंट्स में जो है वही कॉम्बाइन हुआ है। अभी जो आपको मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट वन इज कमिंग फॉर रिकॉम्बिनेंट टाइप, दिस वन, है ना। तो रिकॉम्बिनेंट टाइप में आप कैसे इसको समझाओगे, तो रिकॉम्बिनेंट में क्या होगा, देखो ये हो गया आपकी रिकॉम्बिनेंट टाइप। कैसे होगा ना, ये जो है ना, ये जो चार फैक्टर्स है ना, दे विल एक्सचेंज देयर पोजीशन, मीन्स Y जो है दैट विल कॉम्बाइन विद W+, और Y जो है Y+W के साथ भी कॉम्बाइन हो सकता है, मतलब इन दोनों के बीच एक्सचेंज होगा, तो जाके उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट। तो अभी क्या हो जाएगा ना, YW के इंस्टेड हम क्या लिख सकते हैं ना, Y+W के इसके साथ जब एक्सचेंज हो जाने के बाद तो क्या कंडीशन आएगा ना, एक आएगा YW+ और एक आएगा Y+W, ठीक है। ये दोनों कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो अभी ये जब Y के साथ Y क्रोमोजोम के साथ, है ना, और यहाँ पे क्या हो गया ना, YW ये हो गया X क्रोमोजोम में और Y क्रोमोजोम में सिंपली कोई तो कुछ भी है ही नहीं। अभी क्या हुआ ना, जब भी ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो दिस टू विल बी द रिजल्ट। देखो Y+W एंड YW, और यहाँ पे भी YW+, ये भी YW+YW, और ये जो Y क्रोमोजोम जब इसके साथ कंबाइन हो जाएगा दैट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन विल बी कमिंग एज अ मेल। दैट मीन्स यहाँ पे हम यही प्रूव करना चाह रहे कि एक है सीधा सीधा पेरेंटल टाइप आ रहे और एक कॉम्बिनेशन के थ्रू आ रहे। बट जब रिजल्ट हम लोगों ने देखा, देखो रिजल्ट में हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते इधर, व्हाट इज़ द रिजल्ट कमिंग देयर, है ना। अब देखो रिजल्ट में क्या आया, रिजल्ट में पेरेंटल कंडीशन आ गए 98.7, मतलब 99% आ गया किससे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन में। और रिकॉम्बिनेंट कितना है ना 1.3, मतलब नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना के बराबर। इसका मतलब क्या है ना, इन दोनों के बीच ये एक्सचेंज हुआ ही नहीं, है ना, एक्सचेंज हुआ ही नहीं, बराबर जो था वही F2 जनरेशन में आ गए, ठीक है, पेरेंटल जनरेशन ही आ गए। और यहाँ पे आप देखो वही सेम कंडीशन है कि वाइट और एम फॉर मिनिएचर,
और यहाँ पे भी वाइल्ड टाइप, तो दोनों ही पॉजिटिव में है, तो दोनों पॉजिटिव में रहेगा तभी जाके वाइल्ड टाइप की एक्सप्रेशन आएगा। तो अभी देखो इसका F1 जनरेशन में तो वही है कि इसका तो सेम पैटर्न है, तो ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो Y प्लस जब भी W प्लस M प्लस, तो ये वाइल्ड टाइप आ जाएगा फीमेल के लिए, और मेल के लिए क्या आ जाएगा ना, वाइट मिनिएचर। अभी इसमें भी वही जैसे कॉम्बिनेशन मैंने बताया, सीधा सीधा कॉम्बिनेशन आएगा और एक क्रॉसिंग के साथ कॉम्बिनेशन आएगा, क्रॉसिंग के साथ ये कॉम्बिनेशन, और सीधा सीधा कॉम्बिनेशन कौन सा आएगा, पेरेंटल। अभी पेरेंटल में देखो कितना परसेंटेज आ रहे हैं, 62, और यहाँ पे कितना परसेंट, 37% आ रहे हो। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे बिल्कुल रिकॉम्बिनेंट टाइप आया ही नहीं, और यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट 60-40 के हिसाब से आ रही, 60-30 के मतलब 70-30 के हिसाब से आ रही, बस 60-40 के हिसाब से आ रहा है, बता सकते हो। तो इसका मतलब क्यों ऐसे, वाई इट इज़ हैपनिंग हेयर, why recombination is not occurring here but recombination is occurring here? Reason is there, here gene की position, you just see the position of the gene, they are farly placed, you can see one more time, they are farly placed, you can see here what is the position of the gene here, okay, look at here now, these are the genes, देखो farly placed है, दोनों बहुत अलग अलग प्रेजेंट है, और यहाँ पे कितना क्लोजली प्रेजेंट है। तो जब farly present है at that time they can interchange with each other, so the recombinant type will be coming there, recombination will be coming there, but when they are closely placed at that time recombination will not be occurring, वही होता ही नहीं है। तो that is called linkage, means when the genes are very closely placed so they cannot independently assort और डिफरेंट सेपरेटेड नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ जो फिनोमेनन है उसको हम क्या बोलेंगे, लिंकेज। क्लियर नाउ? नेक्स्ट वन वी आर कमिंग, सो मॉर्गन फाउंड दैट व्हेन जीन्स आर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम सम जीन्स आर वेरी टाइटली लिंक्ड, दैट इज कॉल्ड, while others are loosely linked, जब loosely linked होगा that is not called linkage, but जब भी tightly link आएगा that is called linkage one। recombination किसको बोलते हैं, generation of non parental gene combination is called the recombination, it occurs in crossing over of chromosome during the meiosis। ठीक है, तो next one we are coming, म्यूटेशन। अच्छा, म्यूटेशन में 2 टाइप्स ऑफ म्यूटेशन होता है, जीन म्यूटेशन और एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन मीन्स जब व्हेन द म्यूटेशन टेक्स प्लेस, ये है जीन म्यूटेशन। म्यूटेशन किसको बोलेंगे ना, फेनोटाइपिक वेरिएशन ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन द जीन और डीएनए सीक्वेंस, जो नॉर्मली आपको दिख रही है उसमें से थोड़ा सा चेंज, सडनली चेंज, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द म्यूटेशन। अभी म्यूटेशन दो तरह की होता है ना, द लॉस और गेन, दैट मीन्स आइदर लॉस हो सकता है या तो एडिशन हो सकता है ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन द ऑल्टरनेशन ऑफ द क्रोमोसोम, इट इज कॉल्ड द क्रोमोसोमल एबरेशन। और जीन म्यूटेशन मीन्स द म्यूटेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल पेयर ऑफ डीएनए, इज कॉल्ड द जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। जैसे सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, फ्रीमसेप्ट म्यूटेशन, दैट इज डिलीशन और इंसर्शन ऑफ द बेस पेयर ऑफ डीएनए, जब बेस पेयर पूरा चेंज हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीमसेप्ट। ओके, नेक्स्ट वन वी आर कमिंग फॉर pedigree analysis। अच्छा, this one is actually disorder। Okay, so pedigree analysis means suppose we are discussing about some disease, आप disease के बारे में जानना चाह रहे हो और किसी के आप जैसे पूरा हिस्ट्री जो आपको बोलते हैं ना कि फैमिली हिस्ट्री आपको जानना है कि किसी के पहले था या किसी के उसके पहले किसी को था क्या, तो दैट इज एक्चुअली दैट एनालिसिस मीन्स दैट इज द सेवरल जनरेशन व्हेन यू आर एनालाइजिंग द सेवरल जनरेशन ऑफ एनी जेनेटिकल ट्रेट और वी कैन से एनी टाइप ऑफ डिजीज, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिकल ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड द पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, जब कोई डिजीज़ हो, कोई पर्टिकुलर ट्रेट हो, आप सेवरल जनरेशन में आप उसको स्टडी कर रहे हो, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द पेडिग्री एनालिसिस। इट हेल्प्स इन जेनेटिक काउंसलिंग टू अवॉइड द जेनेटिक डिसऑर्डर। सपोज पहले किसी का था क्या वो डिसऑर्डर और कौन कौन सा प्रिकॉशन लेना चाहिए तब जाके नेक्स्ट जनरेशन में वो डिसऑर्डर नहीं आएगा, so that is actually called the pedigree analysis. Now some symbols we are using for that pedigree analysis, that one first one is male for that box, female one is the round, then sex unspecified, that is rhombus shaped, and then it is coming about the affected one means red color,
simple mating, we are just putting one line between the male and female. Double line means we can say that conjugious or consanguineous. Consanguineous means that is coming when very related, मतलब जब blood related के बीच जब mating हो रहा है, that is actually called the consanguineous mating. And then it is coming पेरेंट्स, ये जैसे ये आपको पेडिग्री चार्ट दिख रही है, यहाँ पे अपर वाला पेरेंट्स है, लोअर वाला दैट डॉटर्स और दैट सन्स है, एंड दे आर एक्चुअली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ, है ना, दे आर अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर ऑफ द बर्थ. अच्छा, पेरेंट्स विद द मेल चाइल्ड इन्फेक्टेड, है ना, ये आइडेंटिकल ट्विंस है, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस है. तो ये सभी हम डिस्कस करेंगे जब थोड़ा सा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तब इसको चीज़ और भी क्लियर हो जाएगा. इसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्टली जेनेटिकल डिसऑर्डर. इन जेनेटिकल डिसऑर्डर वी आर कमिंग अबाउट द, इट इज़ ऑलरेडी आई टोल्ड द 2 कैटेगरी में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक क्रोमोजोमल डिसऑर्डर. तो मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमिन्ड बाय द ऑल्टरनेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन. इट ओबे द, कोई एक सिंगल पर्टिकुलर जीन में कोई चेंज हुआ हो, जैसे सिकल सेल एनीमिया हम दिखाएंगे इसको, है ना, तो उसमें आपको दिख जाएगा कैसे सिंगल जीन में चेंज होने में पूरा के पूरा जो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है. एंड इट ओबे द प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ वन जनरेशन टू अदर. और भी एग्जाम्पल जैसे हीमोफीलिया, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे ड्रिंक्स में, कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलासेमिया एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन वी आर कमिंग, एंड क्रोमोजोमल एबरेशन किसको बोलते हैं ना, कोई जैसे एक एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोजोम. दोनों में डिफरेंस ये है, उसमें जीन से रिलेटेड है, यहाँ पे क्रोमोजोम से रिलेटेड है ना. तो एक तो लास्ट बार जो हम लोगों ने पढ़ा था कि मेंडेलियन इन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ वन जनरेशन मिल ऑल्टरनेशन इन द सिंगल जीन, यहाँ पे सिंगल जीन के ऑल्टरनेशन है, और यहाँ पे क्या टोटल पूरा के पूरा क्रोमोजोम ही आइदर एडिशन हो रही या डिलीशन हो रही. इसमें भी 3 हैं, डाउन सिंड्रोम है, क्लिनफ्लेंटर सिंड्रोम है और टर्नर सिंड्रोम, ये भी हम पढ़ेंगे. अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं हीमोफीलिया. इट इज़ अ, अच्छा इसके बारे में अच्छा, सो नेक्स्ट वी आर कमिंग फॉर द जस्ट हीमोफीलिया डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा टाइम चाहिए इसके लिए. तो हीमोफीलिया के एक्चुअली जब भी हम डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे मेंडेलियन डिसऑर्डर, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हीमोफीलिया. तो हीमोफीलिया एक्चुअली सेक्स लिंक्ड है रिसेसिव डिजीज़. अभी सेक्स लिंक्ड ऑटोजोमल 2 टाइप होता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोजोमल रिसेसिव. तो उसके बारे में भी एक ट्रिक्स है जिसमें हम पता चलता है कि कौन सा सेक्स लिंक्ड है और कौन सा ऑटोजोमल है. अच्छा, इसके बाद ये डिफेक्टिव इंडिविजुअल कंटिन्यूसली ब्लीड, जैसे कि इसका ये डिजीज़ है क्या ना, कहीं पे कट हो जाए तो द ब्लड फ्लो विल नॉट बी स्टॉप. जैसे हमारे कोई जैसे सिंपली व्हेन वी गेट काट, तो द ब्लड इज क्लॉटिंग, सो द ब्लड फ्लो विल बी स्टॉप देयर, एंड बट हियर इन दिस डिजीज द ब्लड फ्लो विल नॉट बी स्टॉप. द जीन फॉर हीमोफीलिया लोकेटेड ऑन वेयर एक्स क्रोमोजोम, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड. सेक्स लिंक्ड इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज द जीन इज प्रेजेंट ऑन X chromosome. In this disease, single protein that involved in the clotting of the blood is affected. The disease transmitted from unaffected carrier female to some of the male progeny. अच्छा, तो why this disease is caused? Because of the single protein which is responsible for this blood clotting is restricted or affected by this change. Okay, next one is it is a presentation flowchart is given to us here. Possible outcome of each progeny. Here what is given, just father with hemophilia X, as I told that one ki that gene is present on the X chromosome, so father with hemophilia definitely X में H जो है that gene will be present there. And XX means mother unaffected, ना तो कैरियर है मदर, अनअफेक्टेड ही है. तो इसमें ये क्या आ जाएगा, ओनली एक्स टाइप आएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, एक्स एच एंड एक्स, यहाँ पे वाई आ जाएगा. ठीक है, तो जो मेल आएगा, सो मेल के फीमेल जो है, फीमेल जो आएगा दैट इज एक्चुअली कैरियर, दिस वन इज कैरियर, और जो मेल आएगा दैट इज नॉर्मल, है ना. सो द मेल इज विदाउट एनी टाइप ऑफ हीमोफिलिक जीन, बट यहाँ पे क्या हो गया ना, द डॉटर्स आर कैरियर, क्योंकि
ये है रिसेसिव वन, इसमें तो पता ही चल रहा है क्योंकि डोमिनेंट वन होते तो एक ही जिन में ये एक्सप्रेस हो जाते, बट यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन है ना, एक्स है, सिंपल एक्स जो है। तो जहाँ पे सिंपल एक्स प्रेजेंट है वहाँ पे लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस नहीं होगा, इसलिए फीमेल्स इस कंडीशन में कैरियर है। नेक्स्ट वन ईयर कमिंग, जब फादर अनअफेक्टेड है ना, एक्स वाई मतलब नॉर्मल फादर और फीमेल कैरियर है, तो इस कंडीशन में क्या आएगा ना, फीमेल के पास दो है, एक तो है एक्स एच और एक के पास है एक्स, और फादर के पास क्या है ना, एक है एक्स और एक है वाई। तो जब एक्स एक्स एच कॉम्बिनेशन होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स मीन्स इट इज डॉटर इज कैरिंग द हेमोफीलिया, और द एक्स एक्स मीन्स द नॉर्मल डॉटर नॉट कैरियर। And when Y is combining with XH है ना, at that condition this female the son is with hemophilia, और जब Y combining with X that is coming the normal son, this is the condition। अच्छा next one you are coming, फादर विथ तीन कंडीशन हो सकते हैं, फादर विथ हीमोफीलिया, मदर विथ कैरियर, ये बहुत ही रेयर होता है कंडीशन, एंड एट दैट कंडीशन सन एंड डॉटर बोथ विल बी वी कैन से विथ हीमोफिलिक डिजीज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके जो गैमेट है दैट विल बिकमिंग, एक तो एक्स एच आएगा एंड दिस वन इज एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स एच और वाई। तो जब वाई और एक्स कंबाइन हो जाएगा दैट इज विच वन इज, दैट इज नॉर्मल सन, एंड वाई जब एक्स 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 एच कॉम्बिनेशन हो जाएगा दैट इज एक्चुअली कमिंग अबाउट द डॉटर विथ हीमोफीलिया, एंड एक्स एच जब एक्स के साथ कंबाइन होगा दैट इज कैरियर, डॉटर विथ कैरियर, और इट इज़ कमिंग अबाउट द व्हेन एक्स एच जब वाई के साथ कंबाइन हो जाएगा दैट इज कमिंग अबाउट द सन विथ हीमोफिलिक। तो यहाँ पे डॉटर और सन दोनों ही हीमोफिलिक, बट दिस इज एक्चुअली वेरी रेयर कंडीशन बिकॉज दिस फादर विथ हीमोफिलिया विल नॉट सर्वाइव एट आफ्टर पर्टिकुलर सर्टेन एज लिमिट। ओके, तो फीमेल सफरिंग फ्रॉम द डिजीज ओनली इन homozygous condition. Homozygous means when XH and XH will be present. Female becoming hemophilic is extremely rare because mother of such female at least carrier है ना, that is carrier will be, mother will be carrier, and we can say the this is the mother will be carrier and father will be XHY, then only this combination will be coming where XH will be coming, means female infected with hemophilia will be coming. So it is coming carrier and father should be hemophilic, female at least carrier and female is carrier here, and father should be hemophilic. Affected transmit disease not only to the son, not to the daughter, and daughter can receive the disease from both father and mother. Okay, next we are coming about the so next we will discuss about the another disease because it will need some flow chart there. Okay.